स्कूल में जब मैं मेरी कंप्यूटर क्लास चलती थी एंड वहाँ पर डेस्कटॉप हुआ करता था और उसी के वहाँ पर एक फ़ोटो हुआ करती थी। कुछ रूइंस है जो बिखरे हुए हैं और कुछ पिलर्स गिरे हुए हैं। सो आई जस्ट थिंक दैट कि एग्जैक्टली क्या है, कौन सा लोकेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है निशो विद नितिन। सो गाइस, आप देख सकते हो फिलहाल मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ एंड दिस इज नॉट अ बुडापेस्ट एयरपोर्ट, दिस इज अर्लैंडो एयरपोर्ट ऑफ स्टॉकहोम. So yeah, as you know that before 3 months I moved to Sweden, Stockholm, and my next travel journey will start from this airport. So yeah, this is my first time I'm traveling out of Stockholm, out of Sweden. So guys, आपने thumbnail और title देखा ही होगा. So I'm traveling to a country which attracts people for its ancient history and the modern era beaches as well. So yeah, this is the country which is at the south of Europe, and this is the Greece. So yes guys, I'm traveling to Greece. Basically मेरा 5 days का trip है and I'll be covering 3 locations. So my first day will be in Athens. Of course guys, if you're traveling to Greece, so Athens must है, Acropolis and the Parthenon. So yeah, I'll be visiting those locations, and then next 2 days I will be travel to Santorini. Of course, if you're traveling to Greece, so Santorini must है. Every single person who is traveling or who is a traveler and everyone who has got wish list to travel across the world, they have this location in the bucket list, that is Santorini. And ऐसा कहा जाता है Santorini का जो sunset है वो world famous है. So I'm just waiting for this moment to see the sunset, and then I will be traveling to a beautiful island. It's Aegina, so I'll try to show you Aegina as well. So yeah, please stay tuned. I'm not directly traveling to Athens because जो flight थी direct from Stockholm to Athens काफ़ी एक्सपेंसिव थी, एंड जो मेरे अवेलेबल डेज थे आई वॉज नॉट एबल टू गेट दी डायरेक्ट फ्लाइट. सो गाइज, आई विल बी ट्रैवलिंग फर्स्ट टू बुडापेस्ट, ऑफ कोर्स माई सेकेंड होम आफ्टर Mumbai. So yeah, I will be traveling to Budapest first. Then I will be having layover around for 6 hours. I have to wait for the next flight. And morning में मेरी flight है from Budapest to Athens. So yeah, please stay tuned and please watch my journey from Stockholm to Budapest first, and from Budapest to then Athens. So guys, this is the busiest airport, Arlanda Airport of Stockholm. Stockholm में total 4 airport है, and this is the बिजनेस एयरपोर्ट. और ये मेरा सेकंड टाइम है. मैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे मूव हुआ था स्वीडन अराउंड 3 months बैक फ्रॉम बुडापेस्ट. मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था. सो गाइस, दिस इज द फ्लाइट आई एम कैचिंग फॉर बुडापेस्ट. So guys, back in memories of my Budapest airport. यही से मैं शूट करता था. दिस इज़ द प्लेस जहाँ से मैंने बहुत सारे व्लॉग्स मेरे स्टार्ट किए थे. एंड दिस इज़ द बुडापेस्ट एयरपोर्ट. सो गाइस, कल रात को 12 बजे मैं बुडापेस्ट पहुँच गया था, एंड आई हैड अ लेओवर अराउंड 6 hours. तो एयरपोर्ट पे सो गया था मैं. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं बुडापेस्ट में अभी भी. आई कुड हैव गॉन आउट, बट अगेन बहुत सारा हासिल हो जाता है वापस आने के लिए. So I'm just heading towards my next flight, that is towards Athens from Budapest. This is the next flight that I'm catching for Athens. Yes, ancient city of Greece, Acropolis, and many things to do. So yeah, this flight will take me to the oldest city of Europe.
गाइस अभी मैंने जस्ट लैंड किया एथेंस एयरपोर्ट पे एंड आई विल बी हेडिंग टू सिटी सेंटर एयरपोर्ट पे। वंस यू सो गाइस एयरपोर्ट पे यहाँ से एग्जिट करने के बाद आपको अपोजिट डायरेक्शन में यू कैन गेट अ मेट्रो, सो आई विल शो यू दैट इज। सो गाइस ये एग्जिट है एथेंस एयरपोर्ट का एंड यू हैव टू गो टूवर्ड्स दिस एस्केलेटर फॉर द मेट्रो। आई विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द मेट्रो, हाउ यू कैन गेट इट टू सिटी सेंटर। सो गाइस ये है मेट्रो स्टेशन और यहाँ पर यू विल सी दिस वेंडिंग टिकट वेंडिंग मशीन और यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दी है लास्ट मेट्रो जो होती है फ्रॉम एथेंस टू एयरपोर्ट और एयरपोर्ट टू एथेंस 11:30 की है। एंड यहाँ पर यू विल गेट पास इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली 90 मिनट्स की टिकट मिलती है अराउंड 9 euros। सो अभी मैंने परचेज़ किया बट जस्ट टू शो यू। सो या दिस इज इंफॉर्मेशन ऑन टिकट फ्रॉम एयरपोर्ट टू एथेंस एंड एथेंस टू एयरपोर्ट। सो गाइज ये मैंने मेट्रो कैच की है टू सिटी सेंटर एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ग्रीस। एथेंस काफ़ी डिफरेंट है नॉर्दर्न यूरोप से, दिस इज़ दी साउदर्न यूरोप एंड मैं अभी रिसेंटली माल्टा गया था तो सिमिलर वेदर है बिकॉज दिस टू कंट्रीज आर एट द मेडिटेरेनियन सी। सो थोड़ा इंडिया ऐसा भी फील हो रहा है मुझे। अगर आप थोड़े माउंटेन्स देखें कि मैं आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र मुंबई, सो महाराष्ट्र में वैसे माउंटेन्स रेंज होते हैं, सो इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट। सो काफ़ी डिफरेंट है और नॉर्दर्न यूरोप से। सो गाइस अभी मैं जस्ट पहुंचा हूँ मोनास्ट्री में और यहाँ से मेरा हॉस्टल है। सो फर्स्ट आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स माई हॉस्टल एंड देन उसके बाद आई विल start exploring the tourist location and first will be Acropolis of course. I'm in Athens so I'll be visiting Acropolis first. So guys these are the beautiful streets of Athens. काफ़ी प्यारी गलियाँ है, you will see graffiti across everywhere और वेदर काफ़ी इंडिया जैसा है मुझे फील हो रहा है। तो मैं स्टूडेंट स्टॉकहोम से आया हूँ सो काफ़ी गर्मी फील हो रही है मुझे बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं मेरे इंडिया में घूम रहा हूँ मैं। एज यू कैन सी ब्यूटीफुल विंटेज बिल्डिंग्स। सो गाइस इस तरह से मेट्रो है एथेंस में। heading towards Acropolis now. I'll show you the way. तो यहाँ पर आपको जाना है towards this direction और वहाँ ऊपर you can see फिलहाल तो पेड़ों में छुप रहा है। But yeah, you can see from here there is this Acropolis and I wanted to visit this place, so yeah, really excited. So guys, अभी I'm just going towards Acropolis. यहाँ की टिकट है around 30 euro you have to pay. It's a bit costly but yeah, that's the thing that you have to visit and this is must if you are coming to Athens. This place is must guys, so I'll give you more information once I reach there. So guys, this is also one of the ruins of Acropolis. As you can see, this is pretty old. So guys, अब मेरे पीछे जो beautiful structure देख रहे हो, this is Acropolis and it was built during 500 BC and basically it's a citadel. Citadel जो होता है it's highest point of the city and जो word है Acropolis Greek word से लिया गया था और Acro means highest point and polis means city. So during that ancient time of Greece, so this was the highest point of the city and यहाँ पर कुछ structures है जैसे Parthenon है, then Temple of Athena Nike है। ये 500 BC में बनाया गया था। You can see the structure and the stones, so old. It's not more than so this is not older than Great Pyramids of Giza.
गाइस आप मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज़ द टेम्पल ऑफ एस्क्लेपियोस एंड उसका छोटा सा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर उन्होंने रखा है सैंपल के लिए। पर देख रहे हो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्रोपोलिस, वहाँ पर एंट्री पॉइंट है। सो आई एम जस्ट गोइंग देयर, आई विल ट्राई टू शो यू। सो गाइस इन पीछे जो छोटा स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टेम्पल ऑफ Athena and one facing of this temple is facing towards the city and other facing is facing towards the complex। and अब ये पीछे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो बीच में, दिस इज़ नोन एज प्रोपेबिया एंड ऐसा कहा जाता है कि दिस कुड बी एंट्रेंस गेट टूवर्ड दिस कॉम्प्लेक्स। अंदर उस टाइम पे कहा जाता है कि एथेना और ब्रह्मकस का एक स्टैचू था और उसके पीछे है पार्थेनॉन। सो या वी विल सी दैट। So guys, this is the exact complex of this Acropolis. That is the structure. It is known as Erechtheion. ऐसा कहा जाता है कि this is the habit temple of King Poseidon, who was the king of sea, and King Queen Athena. And यहाँ पर कहा जाता था कि यहाँ पर एक स्टैचू हुआ करता था क्वीन एथेना ब्रह्मकस का। And that is the main structure, that is Parthenon, which is a temple. So guys आप मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, बचपन से मेरा ड्रीम था, आई वॉन्टेड टू विजिट दिस प्लेस। स्कूल में जब मैं कंप्यूटर क्लास चलती थी एंड वहाँ पर डेस्कटॉप हुआ करता था और उसी के वहाँ पर एक फ़ोटो हुआ करती थी। कुछ रूइंस है जो बिखरे हुए हैं और कुछ पिलर्स गिरे हुए हैं। सो आई जस्ट इस थिंग दैट कि एग्जैक्टली क्या है, कौन सा लोकेशन है और ये डेस्कटॉप पे क्यों रखा गया है। सो गाइज बहुत सारी लोकेशंस मेरे विश लिस्ट में थी एंड दिस वाज वन ऑफ इट एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड ग्रेट फीलिंग दैट आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ पार्थेनॉन। So yeah, this was a temple that was built during 500 BC in this Acropolis complex. As I mentioned, Acropolis is the highest point of the city. Acropolis, this is a Greek word. Acro means highest point and polis means city. So yeah, and there were different structures that were built. As you can see in the front, it was temple of Athena Nike. Then there is main entrance, that is a Propylaea, and then there was a statue of Athena Brahmacus, and then there is a structure that is known as Erechtheion, which is I think hybrid temple for Queen Athena and the King Poseidon. I think there was some war between these two great personalities, and this was of course the Parthenon. सो गाइज़ ये काफ़ी डैमेज भी किया गया था। आई थिंक पर्शियन इन्वेड में, जब पर्शियन ने इन्वेड किया था ग्रीस पे, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज डैमेज एंड आई थिंक देयर वॉज सम वॉर एज वेल बिटवीन टर्की एंड ग्रीस। So I think during that war as well it was been damaged a bit. When you are coming at this place guys, make sure you have shoes of nice grip because यहाँ पर बहुत slippery है और बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ गिर रहे हैं, इवन मैं भी 2-3 बार फिसला हूँ। So please make sure you have a grip of I mean you have a shoes of nice grip because अगर यहाँ पर गिर अगर लगी तो बहुत ज़ोर से लगेगी क्योंकि सारे ग्रेनाइट स्टोन्स है और आई थिंक ये मार्बल्स भी है।
So guys, this is the location of Roman Agora. ऊपर वहाँ पर एक्रोपोलिस है और एक्रोपोलिस के नीचे ही यहाँ पर ये रोमन अगोरा है. So you can visit this place. There is some entry ticket and you can buy and you can visit this place, guys. This is the beautiful oldest railway station. सो गाइस, अभी मैं निकला हूँ नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन पे, दैट इज़ प्लाका. प्लाका एथेंस का एक काफ़ी फेमस स्ट्रीट है. सो यू विल सी लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड कलरफुल स्ट्रीट टू टेक अ नाइस स्नैप फॉर इंस्टाग्राम. सो येस, आई एम जस्ट गोइंग टूवर्ड्स इट. वेरी नियर बाई है. अगर आप एक्रोपोलिस आते हो तो एक्रोपोलिस से ही नीचे एक लेन जाती है राइट साइड पे. सो दैट इज़ द लेन यू कैन कैच फॉर दी प्लाका. सो गाइज, ये है ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स ऑफ एथेंस और प्लाका आगे है. कलरफुल स्ट्रीट्स ऑफ प्लाका. सो बेसिकली शॉपिंग एंड रेस्टोरेंट स्ट्रीट है. और दिस आल्सो यू कैन सी सो ब्यूटीफुल. सो गाइस, आप मेरे पीछे जो ब्यूटीफुल मार्बल स्टोन से बना हुआ स्टेडियम देख रहे हो, दिस इज़ पैनासोनिक स्टेडियम. इसके पीछे काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है. ये बिल्ड किया गया था 330 BC में एंड देन इसको रीबिल्ड भी किया गया था 144 AD में. फ्रॉम दैट पॉइंट दिस स्टेडियम इज़ वेरी वेरी आइकॉनिक. एंड आई थिंक 1896 जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी यहाँ पर ही होस्ट की गई थी. एंड आई थिंक रिसेंटली 2004 के ओलंपिक गेम्स भी यहाँ पर होस्ट किए गए थे. Yeah, this is must visit place. If you're coming to Athens, you can visit this place. तो गाइस, अभी मैं एक नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहा हूँ जो हाईएस्ट पॉइंट है और वहाँ से सिटी का व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है. इट्स लाइकाबेटूस हिल एंड जर्नी काफ़ी प्यारी है. लेट हो चुका है मुझे. इट्स अराउंड 10 PM. नाइट व्यू ऑफ लाइकाबेटूस हिल. और लाइकाबेटूस हिल से आपको जो व्यू मिलेगा ना नाइट में पार्थिनॉन का, ट्रस्ट में अमेजिंग है. अगर आप एथेंस के ट्रिप पे आए तो इस लोकेशन पे नाइट में प्लीज़ आइए. डे टाइम में यू विल नॉट गेट टू सी मच अराउंड, बट नाइट व्यू जो है गाइस, इट्स अमेजिंग. यू कैन सी एंटायर एथेंस फ्रॉम हियर. इट्स रियली ब्यूटीफुल. एंड I think beyond that sea level, I could see there are some lightings and that might be some island, Mykonos या फिर Santorini या कुछ हो सकता है. तो यहाँ से आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने मिलेंगी. So please come to Laikabetus Hill during night time, I must say. अभी रात के 11 बज चुके हैं. So it's really amazing. So guys, that's all about today's vlog.